Hello students, welcome to the next lecture of GOC. This lecture is based on functional group and different organic compound. Okay. Now, apart from hydrocarbon को छोड़कर, hydrocarbons are those which have carbon and hydrogen like alkane, alkene, alkyne. उनको छोड़ के, apart from that, organic compound is actually divided into two parts. First part is the reactive part, which is called as functional group, and the second part is the carbon hydrogen skeleton part, which is called as alkyl group. Okay, so let's try to understand कि एक organic compound apart from hydrocarbon जैसे alkane है, उसको छोड़कर एक organic compound को हम लोग किस तरीके से break कर सकते हैं. So organic compound is broken into two parts. One is the reactive part, and second is the carbon hydrogen skeleton. This reactive part will be called as the functional group, and the skeleton part is basically the alkyl group R. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था. एंड फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस होने से एक कंपाउंड को आइडेंटिटी मिल जाती है, और एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से उनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफर करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर प्रॉपर्टी डिफर्स. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. आपने ये मॉलिक्यूल देखा होगा, दिस मॉलिक्यूल CH3CH2OH. दिस इज कॉल्ड एज ethanol or ethyl alcohol. Now in this molecule, this part, OH part, represents the main functional group, which is the reactive part, and the carbon hydrogen skeleton is the alkyl group. Okay, अब ये एक टाइप का कंपाउंड हो गया जिसको आप लोग जनरली इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल. सो इट्स अ टाइप ऑफ एन अल्कोहल. इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एन alcohol which has a functional group OH called as hydroxy group. Okay, and the remaining part is the alkyl. अब अगर मैं यही OH को replace करता हूँ, I am replacing this OH with another group CH3 CH2 NH2. So now this compound is called as ethyl amine. It comes under the category of primary amine, जिसमें ये जो NH2 group है, it is the functional group of the amine, and the remaining part is the alkyl group, the carbon hydrogen skeleton. Now these two have same alkyl group but different functional group representation. They have a different functional group here. See properly. So here in this case, the property of ethanol and the property of ethylamine will be different. मतलब they will have a different properties. Why? Because they have a different functional group. उनका जो reactive part है वो ही different है. एक alcohol है, OH है, और एक NH2 amines है. So उनका reactive part ही different है. So they have a different property altogether. Okay? But अगर मैंने यही example के अंदर एक example alcohol का लिखा CH3OH, which is called as methyl alcohol या methanol. So this two, ethanol and methanol, belongs to the same category of alcohol. So this two will have same properties. Why? Because they belong to the same class of alcohols. So any organic compound apart from hydrocarbon, apart from alkane and all, it has two different types of, it has a functional group. It is divided into two types. One part is a functional group and second part is the alkyl group, and the compounds with different functional group will have a different property and same functional group will have a same property. So now let us analyze, let us try to understand there are how many different types of organic compound which we need to remember to build up our organic reactions के लिए बहुत ज़रूरी है to identify the different types of organic compounds. कौन से टाइप होते हैं, उनके functions group क्या होते हैं, and how they have been functional groups identified, what are their formulas. Okay, so let's move on to the next part. So I make a kind of a table. Compounds, they are functional group, they are
general formula, also the representation. ओके तो जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट में लिख देता हूँ. दे आर जनरल फॉर्मूला एंड हाउ दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड. Now first class of organic compound is the familiar compound, that is alkane. Now alkane का functional group क्या होगा? Alkane is represented by single bond, so it has a functional group of C, single bond C. The identity of alkane, सिर्फ आपको carbon to carbon single bond ही मिलेगा उसके अंदर. So that will be the identity of an alkane. For alkane has a general formula of CnH2n plus 2 and it is represented as RH, where R stands for alkyl group. ये सब लोगों को पता है, the basic idea. The second member of organic compound is alkene. Now alkenes are represented by C double bond C. Okay, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, आपको याद होगा. And it has a general formula of CnH2n. CnH2n. Represent कैसा करेंगे? R C R double bond C R and R. Now ये अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं और ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है. तो दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. थर्ड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज alkynes. Now alkynes are represented by the formula C triple bond C, out of which one will be a sigma bond and two will be a pi bond, and it has a formula of CnH2n minus 2. It is represented as R C triple bond Cr, where R can be hydrogen or R can be another alkyls, methyl, ethyl, propyl. Okay, ये तीन क्लास आप लोगों ने देख के रखा. फोर्थ इज हैलोअल्केन. देखो नाम ही क्या है, हैलोअल्केन. दे आर डिराइव फ्रॉम अल्केन. कैसे? एक अल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीथेन. यू रिप्लेस, मीथेन इज CH4, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ CH3H. नाउ यू रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम with a halo group. Halo is represented by X. A halo group is generally represented by X. That will be fluoro, chloro, bromo, iodo. कुछ भी हो सकता है. So you replace it by a halogen X. So now this becomes haloalkane. Fluorine हुआ तो fluoromethane, bromine, bromomethane, iodomethane, chloromethane. Okay. So if I write down the general formula of this CH3, सपोज मैंने यहाँ पर CH3X लिखा है, तो CH3 किससे रिप्रेजेंट होता है? CH3 इज ये R अटैच टू X, बिकॉज ये एक मिथाइल है. मिथाइल इज अल्काइल ग्रुप, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? RX. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैलोअल्केन्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैलोअल्केन्स? तो बराबर देखो, मैंने मीथेन लिखा था CH4. मीथेन हैज अ फॉर्मूला CnH2n plus 2. आपने एक हाइड्रोजन निकाल के उसको अल्काइल में कन्वर्ट किया, मिथाइल. तो अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n plus 1, वन हाइड्रोजन लेस, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला. उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया? हैलोजन. सो आई पुट X हियर. सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिकम्स CnH2n plus 1 X, या रिप्रेजेंट एज RX. ओके, सो दिस वॉज हैलोअल्केन, डिराइव फ्रॉम अल्केन. नाउ फिफ्थ वन, सपोज इफ आई राइट डाउन, अच्छा हैलोअल्केन्स में, हैलोअल्केन्स के अंदर दे कैन बी हैलोअरीन्स. व्हाट इज दिस अरीन्स? वो सब के अंदर ही एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड सब में आ सकते हैं. अरीन्स रिप्रेजेंट एन एरोमेटिक कंपाउंड. AR रिप्रेजेंट्स द एरोमेटिक कंपाउंड, द अराइल ग्रुप. तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप X ही होगा, बट X इज नॉट अटैच टू द एलिफेटिक. X विल बी अटैच टू एरोमेटिक, मतलब यहाँ पर उसका फॉर्मूला हो जाएगा एरोमेटिक, ARX. एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल C6H6 बेंजीन है, जिसके हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, तो हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है. सपोज ये हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया X से, सो नाउ दिस बिकम्स हेलोबेंजीन. दिस बिकम्स हेलोबेंजीन. तो ये अब कंपाउंड हो गया हैलोअरीन्स. अरीन्स आर रिप्रेजेंटिंग दी एरोमेटिक कंपाउंड. सो अगर हैलोजन एरोमेटिक से होगा तो हैलोअरीन्स हो जाएगा. ठीक है, याद रखने का. तो ऐसे हर एक कंपाउंड के एरोमेटिक पार्ट भी बन सकते हैं, एलिफेटिक पार्ट भी बन सकते हैं. मेक नोट डाउन ऑफ एवरीथिंग.
नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. द फिफ्थ क्लास ऑफ द एग्जाम्पल इज सपोज इफ आई टेक नाइट्रो अल्केन्स. नाइट्रो अल्केन, देखो ये भी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, तो अल्केन हैज़ अ फॉर्मूला CnH2n+2. सिमिलरली इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. CH4 इज मीथेन. मीथेन इज CnH2n+2. आपने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इट बिकम्स मिथाइल, दैट इज R CnH2n+1, एंड यू रिप्लेस दैट हाइड्रोजन विथ अ फंक्शनल ग्रुप NO2 ग्रुप. NO2 ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रो ग्रुप. आपने NO2 से इसको रिप्लेस किया, सो दिस बिकम्स नाउ नाइट्रो अल्केन. तो इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n+1. उसके साथ में कौन सा ग्रुप अटैच हुआ? NO2. अच्छा, CnH2n+1 को हम लोग क्या बोलते हैं? R, अल्काइल. उससे क्या अटैच है? NO2. सो नाइट्रो अल्केन इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम विद नाइट्रो ग्रुप. अच्छा, नाइट्रो ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हो, नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिटन इन दिस मैनर, जहाँ पर अटैचमेंट नाइट्रोजन से होता है. और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O, O-. ये याद रखना इसका स्ट्रक्चर, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. रिमेंबर दिस. सो दिस इज अ नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, ऐसा रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, और ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स. रिमेंबर दिस इज नाइट्रो ग्रुप जहाँ अटैचमेंट N से होगा. ओके, सो दिस इज नाइट्रो अल्केन. अच्छा, अभी इसी के अंदर ही रिमेंबर इस नाइट्रो अल्केन में अटैचमेंट N से है. अगर मैंने यही अटैचमेंट ऑक्सीजन से कर दिया तो वो बन जाएगा अल्काइल नाइट्राइट. ऑक्सीजन से अगर मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ, और नाइट्रीटो ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप ऐसी है, बट ये बार ऑक्सीजन से अटैच है. सी दिस ऑक्सीजन ऑल्सो हैव अ चार्ज, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच है तो वो ONO हो जाएगा. दिस विल बी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्राइट. नाइट्रो में N से अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन से, सो इट बिकम्स RON डबल बॉन्ड O. सो दिस बिकम्स अल्काइल नाइट्राइट. तो RONO इज अल्काइल नाइट्राइट एंड RNO2 इज नाइट्रो अल्केन. दोनों में फ़र्क देखना, एक जगह N से अटैचमेंट है और एक जगह पे किससे अटैचमेंट है? O से. ओके, सो अल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो अल्केन में फ़र्क है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ मॉलिक्यूल. द सिक्स्थ मॉलिक्यूल में वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल साइनाइड, ऑल्सो कॉल्ड एज, नाम देख लो, अल्केन नाइट्राइल. इसमें फंक्शनल ग्रुप CN ग्रुप होता है, मतलब R किससे अटैच होगा? C से अटैच होगा इन साइनाइड. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज साइनो ग्रुप. इसको हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, साइनो ग्रुप. ये नाइट्रो ग्रुप X इज कॉल्ड एज विच ग्रुप? हैलो ग्रुप. क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ग्रुप. ओके, तो X इज योर हैलो ग्रुप, NO2 इज नाइट्रो ग्रुप, ONO इज नाइट्रीटो. इसको नाइट्रीटो बोलते हैं. देखो नाइट्रो और नाइट्रीटो में फ़र्क है, एक जगह पे N से अटैचमेंट, एक जगह पे O से. नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अल्काइल साइनाइड. साइनाइड इज CN ग्रुप, इज कॉल्ड एज साइनाइड ग्रुप. ओके, इससे क्या अटैच होगा? अल्काइल. अल्काइल किससे रिप्रेजेंट होता है? R से. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RCN या RC ट्रिपल बॉन्ड N, एक ही बात है. और जनरल फॉर्मूला हम लोग कैसा लिखेंगे? सिंस इट इज मेड फ्रॉम R के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? CnH2n+1. ठीक है, दिस इज R. अब बचा क्या है यहाँ पर? साइनाइड, तो CN ईयर. तो फॉर्मूला बिकम्स CnH2n+1 CN या RCN. ओके, साइनो ग्रुप हो गया अल्काइल साइनाइड, जहाँ पर R किससे अटैच होगा? C से. अभी इसी के अंदर एक और एक पॉइंट देखना. सपोज इफ आई राइट डाउन अल्काइल आइसोसाइनाइड, सी प्रॉपरली, अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड नॉट साइनाइड. तो इन दिस केस द अटैचमेंट विल बी NC ग्रुप. ऐसा लिखोगे, मतलब अटैचमेंट C से नहीं होगा, अटैचमेंट किससे होगा? N से होगा, जिसको हम लोग N ट्रिपल बॉन्ड C भी बोलते हैं. NC इज द अटैचमेंट.
सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। तो इस ग्रुप को हम लोग आइसोसाइनो बोलते हैं और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो। यहाँ पर अटैचमेंट होगा N से, यहाँ अटैचमेंट होगा C से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 NC। मतलब दोनों का फॉर्मूला एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है, सेम, बट एक का रिप्रेजेंटेशन RCN है और दूसरे का रिप्रेजेंटेशन RNC है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये दोनों चीज़ समझ में आएगा। अल्काइल आइसोसाइनाइड जिसको अल्केन नाइट्राइल भी बोलते हैं और एक क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बेलामीन भी बोलते हैं या कार्बेलामाइन, याद रखना। कार्बेलामाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल आइसोसाइनाइड। इट हैज़ अ वेरी ऑफेंसिव पंजेंट ओडर, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब आपने एक वर्ड सुना होगा आपके 10th स्टैंडर्ड में, आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स? If you remember, isomers are those compound which have same molecular formula, आपने ये पढ़ा है, and they have a different structural formula, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होगा। बराबर देखना, अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड का जनरल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक जगह पे साइनाइड से अटैच है C से और एक जगह पे N से अटैच है, आइसोसाइनाइड। सो दैट इज वाई बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज functional isomers. Why they are called as functional isomers? Because they have same molecular formula but different functional group। तो जिनके पास molecular formula same होता है but functional group different होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं functional isomer। So alkyl isocyanide and alkyl cyanides are functional isomers, Fi functional isomers। बराबर देखो, नाइट्रो में NO2, नाइट्रीटो में ONO, मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम है बट उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर में क्या है, एक जगह से N अटैच है और एक जगह से O अटैच है। बाकी सब देखो एग्जैक्टली सेम है, एक ही N है, 2 ऑक्सीजन है, एक R है। सो ये दोनों भी क्या हुए, अल्काइल नाइट्रो अल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स कौन हो गए, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन। Okay guys, let's start with the next molecule. The next molecule is molecule number 8। बराबर इसका नाम देखना, alkyl cyanate, and molecule number 9 is alkyl isocyanate। Now alkyl cyanate and alkyl isocyanate is different from cyanide and isocyanide। Cyanide, alkyl cyanide has a formula of RCN, isocyanide has a formula of RNC। एक जगह पे फंक्शनल ग्रुप साइनो है, एक जगह पे फंक्शनल ग्रुप NC है, that is isocyanide है। But now I am talking about two more compounds, that is cyanate and isocyanate। तो इसमें जो फंक्शन ग्रुप होगा साइनेट में इज OC�BN। बराबर देखना, मतलब साइनाइड के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ROCN। ओके, दैट विल बी ऑफ साइनेट। साइनाइड और साइनेट डिफरेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पर होगा तो इट विल बी आइसोसाइनेट में N+C+O, मतलब अटैचमेंट किस पे होगा, नाइट्रोजन से। सो नाइट्रोजन से ही अटैचमेंट है देखो आइसोसाइनेट में, बट N और C के बीच में क्या आ गया है, सॉरी N और C के बाद में क्या आ रहा है, O, और यहाँ पर C से पहले क्या आ रहा है, O। तो साइनेट इज OCN, आइसोसाइनेट इज NCO, साइनाइड इज CN एंड आइसोसाइनाइड इज NC। दोनों में फर्क हमेशा समझने का। ओके, तो अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑब्वियसली हम लोग अल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक CH3H, मीथेन, सो मीथेन इज CnH2n+2। आपने एक H निकाल दिया तो वो बचेगा CH3, तो इट बिकम्स CnH2n+1। अच्छा, यहाँ आपने डाल दिया OCN, सो दिस बिकम्स
मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी पे बेस्ड है, ये केमिकल रिलीज हुआ था, आइसोसाइनाइड नहीं था वो, आइसोसाइनेट था, पॉइजनस गैस। बहरहाल CnH2n+1 becomes a methyl, what is remaining here? OCN। तो इसके लिए इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OCN। अच्छा, CnH2n+1 इज रिप्रेजेंट बाय व्हाट? R, तो ROC ट्रिपल बॉन्ड N इज अल्काइल साइनेट, एंड अगर यहाँ अटैचमेंट करना है तो N से कर दो, तो फॉर्मूला विल बी CnH2n+1 NCO। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज एग्जैक्टली सेम, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन क्या है? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये N से अटैच है, वो O से अटैच है। तो टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। तो आपने देखा नाइट्रो अल्केन, अल्काइल नाइट्राइड फंक्शनल आइसोमर्स है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपने देखा साइनाइड आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर्स, साइनेट आइसोसाइनेट फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाएंगे हम लोग। द नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 10th वन, alcohols, also called as अल्केनॉल। अल्केन का ई हम लोग ने रिप्लेस किया ऑल से, दो वॉवल नहीं हो सकते ना साथ में, IUPAC में देखेंगे हम लोग। नो, अल्कोहल इज रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला बाय द फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप। OH ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला बनाना है तो ऑब्वियसली हम लोग फिर से एक मीथेन ले लेते हैं। मीथेन इज CH4, उसका आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया CH3OH से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप से। सो CH3 इज योर अल्काइल, दिस इज OH, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ROH, और जनरल फॉर्मूला क्या होगा? चलो, CH3 इज अल्काइल, अल्काइल इज CnH2n+1, बचा क्या? OH। अच्छा, अगर यही H को आप अंदर डाल दोगे, इफ इट गोज इनसाइड टू कंबाइन विद द फॉर्मूला, इसका जो नया फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा Cn। नया फॉर्मूला मतलब सेम फॉर्मूला बट इन अ डिफरेंट मैनर, CnH2n+2O। देखो एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया तो 1 से 2 हो गया। सो दिस कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, और ये एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें एक ही OH है। सो वी कैन राइट डाउन कि दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वाई? बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 OH, 2 OH होगा तो डाइहाइड्रिक। ठीक है, सो ये एल्कोहल हो गया इसके अंदर। अब मॉलिक्यूल नंबर 11 लेता हूं मैं। मॉलिक्यूल नंबर 11 इज ईथर। Now ethers are represent, ethers they have a functional group of COC linkage, ether linkage। मतलब ये है कि दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पर एक R अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप, और यहाँ एक ऑक्सीजन, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ROR। फॉर एग्जाम्पल एक R की जगह पे आप मिथाइल डालो CH3OCH3, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। तो दिस बिकम्स अ ईथर COC। देखो यहाँ पर एक C अटैच O से है, O अटैच C से है, ROR इज द रिप्रेजेंटेशन। अब जनरल फॉर्मूला निकालना है तो इसी में से निकालो। दिस वॉज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ईथर मैंने बनाया। इसको इफ़ यू कंबाइन इट हैज़ C2, इट हैज़ H6NO। अच्छा, हर एक फॉर्मूला कौन से फॉर्म में होना चाहिए? CnH2n के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो ये बराबर, देखो अगर इसको CnH2n के फॉर्म में लिखा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ C2H2 × 2, N जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा, तो 2 ही है, तो 2 2 से कितना होता है 4, कितने चाहिए H 6 चाहिए, तो 2 बच गया तो 2। सो बन गया क्या फॉर्मूला? 2 की जगह पे आ गया N, तो यहाँ पर भी आएगा N, तो CnH2n+2 बच रहा क्या है O, मतलब ईथर एज अ फॉर्मूला CnH2n+2O। अब बराबर नोटिस करो जो मैंने लिखा है। एल्कोहल हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप OH, ईथर हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप COC। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, बट दोनों का जनरल फॉर्मूला बराबर देखोगे तो वो सेम आ रहा है। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज
फंक्शनल आइसोमर्स। तो देखो अल्कोहल ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज फिनॉल। एक्चुअली फिनॉल वो अल्कोहल का ही पार्ट है, बट अल्कोहल नहीं है। यहाँ पर OH ग्रुप, ऑल रिप्रेजेंट्स विच ग्रुप? OH ग्रुप इज अटैच टू फीन। आपको याद होगा द अनदर नेम फॉर फिनाइल बेंजीन इज फीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6, ये हो जाएगा C6H5। ओके, तो फिनॉल इज a hydroxy compound, but that hydroxy group is not attached to a alkyl, it is attached to a aromatic ring। मतलब ये भी OH ग्रुप ही है, बट ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है, ये OH ग्रुप इज अटैच टू एरोमेटिक, मतलब ये एक फिनॉलिक ग्रुप है, बिकॉज फीन बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो इफ आई राइट द फॉर्मूला आई कैन राइट डाउन कि फिनॉल इज नथिंग बट C6H5OH, मतलब बेंजीन लिया था हम लोगों ने। देखो every carbon has a hydrogen atom, you replace this hydrogen। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। आप ये हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह पे आप डाल दो OH ग्रुप, तो अब ये बन जाएगा C6H5। एक हाइड्रोजन निकाल दिया, OH। now this is called as phenol, okay, attached to the ring। तो फिनॉल और अल्कोहल में फर्क देखना है। अल्कोहल ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, याद रखने का। अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट फिनॉल। फिनॉल तो OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच हुआ तो बना है। इसके लिए आप जनरली एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को AROH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये फिनॉल है, बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ऐसा ग्रुप बना दूँ, अब बोलेंगे सर दिस इज नैफ्थलीन। मतलब यस, नैफ्थलीन का आपने एक H, हर एक कार्बन पे H है, तो हर एक कार्बन नहीं, एक ही कार्बन के H को आप रिप्लेस करो OH से, तो अब ये बन जाएगा नैफ्थॉल, क्योंकि ये नैफ्थलीन से अटैच है, तो ये नैफ्थॉल हो गया। और अगर ये फीन मतलब क्या होता है? बेंजीन से अटैच होगा तो फिनॉल बन जाएगा। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ OH ग्रुप attached to the aromatic ring। so this was phenol, but यहाँ पर alcohol ether functional isomers है। अब next पे जाएंगे, the next molecule, the 13th molecule, aldehyde, also called as alkanal। मतलब अल्केन का E आपने किससे रिप्लेस किया? अल्डिहाइड के आल से। जैसा आप यहाँ पर अल्कोहल अल्केन का E को रिप्लेस करते हो ऑल से, अल्कोहल के ऑल से रिप्लेस करते हो, वैसे ही अल्डिहाइड में नेमिंग सिस्टम में IUPAC में अल्केन के E को रिप्लेस करेंगे आल से। नाउ अल्डिहाइड आपको याद होगा, इट इज रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप CHO, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो CH डबल बॉन्ड O, कॉल्ड एज अ फॉर्माइल ग्रुप। CHO को फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। नाउ इसका फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल, CHO ग्रुप को R से अटैच कर दो तो RCHO अल्डिहाइड बन गया। एलिफेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक से अटैच करोगे तो एरोमेटिक अल्डिहाइड बनेगा। अच्छा, जनरल फॉर्मूला R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? CnH2n+1 CHO। ठीक है, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला निकल सकता है? लेट्स सी एन एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी ए सिंपल एग्जाम्पल। R की जगह पे मिथाइल डालते, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप CH3, तो बचेगा क्या है यहाँ पर? CHO। आपने इसका नाम पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, अभी मैं इसको अगर कंबाइन करूँ तो इट इज C2H4O। देखो, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। हर फॉर्मूला कौन से फॉर्म में होना चाहिए? CnH2n। तो अगर मैंने 2 को n ले लिया तो C2H2 O बचेगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। तो अगर ये n होगा तो ये भी n होगा। इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला अल्डिहाइड का क्या बना? CnH2nO। तो आइदर इट कैन बी CnH2n+1 CHO और CnH2nO। ठीक है, फॉर एन अल्डिहाइड। अब 14th मॉलिक्यूल, ये भी आपने देख रखा है। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कीटोन, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केनोन। देखो, अल्केन का E, फिर से अल्केन का E आपने किससे रिप्लेस किया? कीटोन के ओन से। कीटोन, अल्केनोन। कीटोन आपको याद होगा, रिप्रेजेंट बाय having a functional group CO group, C double bond O, called as keto group, or it is also called as oxo। IUPAC में normally यूज करते हैं oxo group।
C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O को बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो उसको ऑक्सोस बोल सकते हैं हम लोग IUPAC में। अच्छा, अब कीटोन क्या होगा? इट शुड बी हैविंग C अटैच टू डबल बॉन्ड O एंड देयर शुड बी 2 कार्बन चेन एट लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब एक अल्काइल लेफ्ट पे होना चाहिए, एक अल्काइल राइट पे होना चाहिए। इसके लिए इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, जनरल फॉर्मूला निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला याद मत करो, एग्जाम्पल से निकाल सकते हो आप। दोनों सिंपल एग्जाम्पल बनाओ, दोनों आर को मिथाइल से सब्स्टिट्यूट करो। सो मिथाइल से करोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम आपने सुना होगा 10th में, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, कलर रिमूवर, एसीटोन। एसीटोन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो इट हैज हाउ मेनी कार्बन एटम? 3। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम? 6। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1। तो C3H6 सीधा 6 डबल है, मतलब अगर CN लिए तो H2NO बचेगा, क्योंकि N का सीधा डबल है 2N। देखो, सो मतलब कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CN H2NO, दैट्स इट। और रिप्रेजेंटेशन क्या है? RCOR। अब जरा बराबर नोटिस करोगे, सो अल्डिहाइड एंड कीटोन दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक जगह पे RCHO से अटैच है और एक जगह पे दोनों R के बीच में C डबल बॉन्ड हो। सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट सेम क्या है? जनरल फॉर्मूला। दैट इज वाई दिस टू आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। सो इस बोर्ड पे अभी साइनेट, आइसोसाइनेट, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। ओके, साइनेट का आइसोसाइनेट है, अल्कोहल का ईथर है, अल्डिहाइड का कीटोन्स है। प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स पे जाऊंगा। Let's start with the next type of functional group. After aldehyde and ketone, the next compound, compound number 15 is, everyone is familiar with this word, carboxylic acid, also called as alkanoic acid। मतलब अल्केन का E आपने रिप्लेस किया OIC एसिड से। इफ यू रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH, ऑल्सो रिटन एज C डबल बॉन्ड OH। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COH ग्रुप। COH ग्रुप इट्स कॉल्ड एज कार्बोऑक्सी ग्रुप, कार्बोऑक्सिल भी बोलते हैं। कार्बोऑक्सी ग्रुप IUPAC में हम लोग प्रेफर करते हैं लिखना। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ R अटैच कर दो, सो इट हैज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ RCOOH। जनरल फॉर्मूला बिकम CnH2n + 1 COOH। सिंपल, R की जगह पे आपने डाल दिया CnH2n + 1। दूसरा फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं आप। कोई सिंपल एग्जाम्पल लो, R की जगह पे आप ले लो CH3। अगेन ये कौन सा एग्जाम्पल है? याद होगा, एसिटिक एसिड, विनेगर में जो मिलता है, एसिटम। नाउ दिस एसिटिक एसिड हैज 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो बराबर देखोगे तो हाइड्रोजन और कार्बन सीधा डबल है, हाइड्रोजन सीधा डबल है कार्बन का। तो इफ आई टेक 2 एज N, तो इट बिकम्स 2N, 2 2 4। So that is why the another formula of carboxylic acid is CnH2nO2. CnH2nO2. Okay. Now molecule number 16 is ester. Ester. मैंने ईथर नहीं लिखा, ईथर वॉज COC, ROR। आपको मैं फिर से डिफरेंस बताता हूं। ईथर इज ROR, कीटोन इज RC डबल बॉन्ड OR। और अब मैं लिखने जा रहा हूं एस्टर, ESTER। एस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल अल्कैनोएट। अच्छा, एस्टर आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O अटैच टू अ R, अल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पर 2 अल्काइल है बेसिकली। मतलब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट विल बी R
COOH हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय अ अल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड O OR। सो दिस इज एस्टर, वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप ऑफ एसिड अटैच टू C डबल बॉन्ड OO। वो तो है ही, लेकिन ये H हट के R आ गया इसकी जगह पे, तो दिस इज एस्टर RCOOR। तो एस्टर इज RCOOR डैश, अल्काइल O से अटैच है एक जगह पे। तो ईथर इज ROR, कीटोन इज RCOR, एस्टर इज RCOOR। डिफरेंस देख लेना दोनों का, कंफ्यूज नहीं होने का दोनों तीनों में। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला ढूंढना है, ढूंढते हैं। कैसा ढूंढेंगे? एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। कैसा एग्जाम्पल? सिंपल करते हैं, दोनों R की जगह पे आप CH3 डाल दो। सो व्हेन यू पुट CH3, सब्स्टिट्यूट CH3 इन बोथ द R, यू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चलो इसको कंबाइन करते हैं, तो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। देखो सीधा डबल हो रहा है, डबल मतलब C3 है तो H6 है, तो 3 2 डबल हुआ ना, इसका मतलब CN लिया तो H क्या होगा? 2N हो जाएगा, और बचा क्या? O2। अब देखो बराबर से, एस्टर और एसिड दोनों में जनरल फॉर्मूला इज सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज different, therefore they are called as functional isomers। तो एसिड एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। अब मैं मॉलिक्यूल नंबर 17 लिखने जा रहा हूं। ना मॉलिक्यूल नंबर 17 लिखने से पहले आई विल राइट डाउन दैट दिस मॉलिक्यूल नंबर 17, 18, 19 जो भी मैं मॉलिक्यूल्स अभी बताऊंगा, those molecules, few molecules are made up of carboxylic acid, they are called as derivative of acid। वो एंड में मैं मार्क कर दूंगा कि these are derivative of acid। फर्स्ट आई रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल नंबर 17। मॉलिक्यूल नंबर 17 में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। द मॉलिक्यूल नंबर 17 इज acid chloride, also called as IUPAC name is alkanoyl क्लोराइड। अल्केनोविल क्लोराइड IUPAC नेम होता है ना। एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O Cl। कैसे बना ये? एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COH। तो एसिड का OH निकाल दो, एसिड का OH निकाल दो, उसकी जगह पे आप डाल दो क्लोरीन, तो ये बन गया एसिड क्लोराइड। नाउ COCl इज कॉल्ड एज, COCl इज कॉल्ड एज क्लोरो कार्बोनिल। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? क्लोरो कार्बोनिल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरो फॉर्माइल, या क्लोरोकार्बोनिल बोलो या क्लोरोफॉर्माइल बोलो, दोनों इसी का ही नाम है COCl का। बनता किससे? एसिड से। कैसे? एसिड का OH किससे रिप्लेस करना है? Cl से। अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन R C डबल बॉन्ड O Cl। जनरल फॉर्मूला R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? CnH2n+1 COCl। ओके, तो ये हो गया एसिड क्लोराइड, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केनोइल क्लोराइड। बनता किससे? एसिड से। अब मॉलिक्यूल नंबर 18 देखो। मॉलिक्यूल नंबर 18 इज एसिड एनहाइड्राइड। बराबर देखो इसका नाम क्या? नहीं, एसिड एनहाइड्राइड बाद में करता हूँ। फर्स्ट आई विल डू एसिड अमाइड, एसिड अमाइड ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केना अमाइड। अल्केन का ई आपने रिप्लेस किया वर्ड अमाइड से। Now acid amide has a functional group of C double bond O NH2 group। ये कैसे आया? एसिड का OH लो, वो OH को, एसिड का OH था COH, उस OH को आप रिप्लेस कर रहे हो विथ NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप बोल सकते हैं। तो CONH2 is a functional group of acid amide, that is alkena amide। Now this group is called as अमीडो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2, अमीडो ग्रुप, या कार्बामोइल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बामोइल। याद रखना, CONH2 अमीडो ग्रुप और कार्बामोइल ग्रुप।
रिप्रेजेंटेशन आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 या जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 CONH2। अल्केनामाइड एलिफेटिक, एरोमेटिक हुआ तो CONH2 रिंग से अटैच होगा, सिंपल। ठीक है, अब बराबर इतना, ये भी एसिड से बना है, तो एसिड क्लोराइड एसिड अमाइड दोनों किसके डेरिवेटिव हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड के। एस्टर भी हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एस्टर में अपने H किससे रिप्लेस किया? R से। अब मॉलिक्यूल नंबर 19 देखो, मॉलिक्यूल नंबर 19 में मैं लिख रहा हूं, अभी लिख रहा हूं मैं, एसिड एनहाइड्राइड ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केनोइक एनहाइड्राइड। जरा बराबर देखो, अल्केनोइक, अल्केनोइक एसिड का पूरा अल्केनोइक ले लिया, सिर्फ एसिड नहीं लिखा, उसकी जगह पे एनहाइड्राइड लिख दिया। देखो नेम देख लो बराबर, एसिड का अल्केनोइक, यू टेक अल्केनोइक ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? अल्केनोइक एसिड। यू रिप्लेस दिस एसिड विद द वर्ड एनहाइड्राइड, इट बिकम्स एसिड एनहाइड्राइड या अल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब विदाउट वाटर, अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, कहां से? फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। देखो बराबर, पहले मैं एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप देता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि मैं वो फंक्शनल ग्रुप क्यों लिख रहा हूं। इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और इसका रिप्रेजेंटेशन है R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। देखो इसमें भी 2 अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं ऑन दी आइदर साइड। तो अभी क्वेश्चन ये है कि सर फंक्शनल ग्रुप आया कहां से? मैं बोला देखो बराबर, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना मोल्स लिया है? 2 मोल्स। अब आप इसमें से पानी निकालो, वाटर कैसा निकालोगे? देखो ये OH और ये H, वाटर निकल गया, निकल गया सर। तो फिर ये O जाके किसको अटैच होगा? ये O जाके C को अटैच होगा। तो जब ये C को अटैच होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कैसा हुआ? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो वाटर निकाल दोगे तो ऑब्वियसली इससे अटैच होगा और यही कंपाउंड बन जाएगा। तो वाटर निकाला तो एनहाइड्राइड, कहां से वाटर निकाला? एसिड से, दैट इज व्हाई द नेम इज एसिड एनहाइड्राइड। ओके, एसिड एनहाइड्राइड रिप्रेजेंट बाय RCOOCOR। ये भी एक मॉलिक्यूल हो गया ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। मॉलिक्यूल नंबर 19। नाउ इसमें क्लियर है? तो अब याद रखना, ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनाइडाइड, ऑल ऑफ देम आर डेरिवेटिव ऑफ एसिड, क्योंकि ये एसिड से ही बने हैं, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स हो गए। रिमेंबर दीज कंपाउंड्स। ओके, नाउ मैं अभी मॉलिक्यूल नंबर 20 ले रहा हूँ, डिफरेंट मॉलिक्यूल, दैट इज सल्फोनिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, रिप्रेजेंटेशन RSO3H। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 SO3H। दिस इज कॉल्ड एज अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया, SO3H दिखेगा। प्लीज कॉपी इट डाउन। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। Let's start with molecule number 21. Molecule number 21, 22 and 23 are derivative of ammonia. ये अमोनिया से बने हैं। अमोनिया NH3, nitrogen has 1 lone pair. If you replace one hydrogen atom of ammonia with an alkyl group or a aryl group, aryl मतलब aromatic या alkyl group, it forms RNH2. This becomes a primary amine. अमोनिया से बना है अमाइन। तो इसमें मॉलिक्यूल नंबर 21 है प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, विच इज कॉल्ड एज अ अमाइनो ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन हो गया
RnH2, R की जगह पे आप लिख सकते हो CnH2n+1 NH2। अगर दोनों हाइड्रोजन को अंदर डाल दोगे तो उसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा CnH2n+3n, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन आपने अंदर ही डाल दिया ना इसके। So this is primary amine. Where you replace one hydrogen atom of ammonia with an alkyl group, it becomes primary amine. लेकिन अगर आपने दो alkyl group से replace किया तो वो आपका molecule number 22 बनेगा secondary amine. Secondary amine is having a function group NH. देखो NH बचा है सिर्फ, R तो निकल गया, तो it has only NH now. NH is called as imino group. याद रखने का, NH2 is amino group, NH is called as imino group. Now क्या बनेगा, देखो दो R है, so it has a representation of RNHR. अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालूं तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। कैसा एग्जाम्पल, दोनों R की जगह पे मैं CH3 डाल देता हूं, तो CH3 NH CH3 हो गया। टोटल काउंट करो तो C2H6 नहीं, H6 नहीं, H7n है, 3 और 5 6 7 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n। तो अगर मैं C2 है तो H2 × 2 लूँगा तो 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, बट हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 7, मतलब प्लस कितना करना है 3, और बचा क्या n। अच्छा, ये 2 को अगर मैंने n लिया तो ये 2 भी n हो गया। तो नाउ द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, CnH2n+3n। देखो दोनों का सेम फॉर्मूला आ रहा है अल्टीमेटली। अब अगर अमोनिया NH3 के मैंने तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए R से, R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी मैं मार्किंग देता हूँ R and R', सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तीनों, तो वो बन जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, विच हैज़ अ टर्शरी नाइट्रोजन ग्रुप। इसको टर्शरी नाइट्रोजन बोलते हैं या अल्काइल नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। Now it has representation of Rn, RnR'। सब पे लोन पेयर होगा बिकॉज दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अच्छा, अभी इसका जनरल फॉर्मूला निकालना है, निकालता हूं मैं। चलो, तीनों R की जगह पे आप मीथाइल ले लो, सबसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन इज मीथाइल। तो अब क्या बचेगा, C3H3 9n। तो ये क्या हो गया, C3H2 × 3, हमेशा CnH2n हो जाए, 2 3 से कितना होता है 6, लेकिन 9 हाइड्रोजन तो +3 करना पड़ेगा। अगर ये 3 को n किया तो ये 3 भी n हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या बचा आपका, CnH2n+3n। ओके, तो अब बराबर देखोगे तो प्राइमरी अमाइन इज रिप्रेजेंट बाय द जनरल फॉर्मूला, प्राइमरी अमाइन इज रिप्रेजेंट बाय द जनरल फॉर्मूला NH2 अमीनो, secondary amine with NH imino, and tertiary amine with N that is nitrile और tertiary nitrogen atom। तो तीनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तीनों का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बट तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम। दैट इज व्हाई दिस 3 amines which are derivative of ammonia are called as functional isomers। okay, functional isomers। So I have to make note of few points। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से क्या हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमर्स देखे, कौन से RnO2 नाइट्रो अल्केन, RON डबल बॉन्ड O अल्काइल नाइट्राइट, दूसरा RCN अल्काइल साइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड, थर्ड ROCN अल्काइल साइनेट एंड RNCO आइसोसाइनेट, फोर्थ ROH एल्कोहल, ROR ईथर, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है CnH2n+2O।
फिर फिफ्थ आपने देखा RCHO अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, इनका फॉर्मूला क्या है CnH2NO। फिर अपने सिक्स्थ देखा RCOOH एसिड, RCOOR डैश एस्टर, इनका भी फॉर्मूला क्या है CnH2nO2। फिर अपने मॉलिक्यूल नंबर 7 आइसोमर, सेवेंथ आइसोमर हम लोगों ने किसका देखा अमाइंस का, RNH2 प्राइमरी अमाइन, RNHR डैश सेकेंडरी अमाइन, RNR डबल डैश टर्शरी अमाइन। इन तीनों के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+3n। तो ये सब एक दूसरे के क्या हो गए फंक्शनल आइसोमर। सेकेंड पॉइंट रिमेंबर, एसिड डेरिवेटिव्स जो एसिड से बने हैं, एसिड के जैसे है, जैसा एस्टर, ठीक है। देन यू हैव RCOCl एसिड क्लोराइड जो हम लोग ने लिखा था अभी। देन यू हैव RCONH2 एसिड अमाइड। देन यू हैव RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड, बेसिकली एसिड के डेरिवेटिव्स है। थर्ड यू नीड टू रिमेंबर विच आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल का मतलब ये होता है C डबल बॉन्ड O। तो कौन से कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O आता है ये हमको याद रखने का। सबसे पहला कंपाउंड है अल्डिहाइड, दूसरा कंपाउंड है कीटोन RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। So you have aldehyde, you have ketone, acid RCOH, इसमें भी C डबल बॉन्ड O आता है। एस्टर RCOR डैश, इसमें भी C डबल बॉन्ड O आता है। Then you have RCOCl acid chloride, then RCONH2 acid amide, then RCO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड। ये सब के अंदर हम लोगों को कौन से ग्रुप मिलते हैं कार्बोनिल ग्रुप मिलता है, ठीक है। तो वी हैव अ कार्बोनिल ग्रुप इन दिस, तो दे आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिमेंबर दीज कार्बोनिल कंपाउंड्स। देन फोर्थ पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं होता, नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? OH ग्रुप में नहीं होता सर, हैलोजन में नहीं होता सर, NO2 में नहीं होता, NH2 में नहीं होता, NH में नहीं होता, N टर्शियरी अमाइन, इसमें भी हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप जो है नॉन कार्बन, इसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होते हैं इसके अंदर। ओके, सो दीज आर द कंपाउंड विच डू नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप्स इन द, डू नॉट हैव कार्बन इन देयर फंक्शनल ग्रुप। इनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है। अब कार्बन वाले कौन से हो जाएंगे? कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, मतलब कार्बन या विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं सर? साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है, देन यू हैव OCN आइसोसाइनेट हो गया, उसमें होता है सर कार्बन। फिर आइसोसाइनेट में भी होता है। देन यू हैव RCHO में होता है, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन में होता है, RCOH एसिड में होता है। देन यू हैव एस्टर, then you have amide RNH2, then you have RCOCl, then you have RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड। सो ये सारे कंपाउंड्स में हम लोगों को कार्बन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा और ये सारे में फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होते हैं। ओके,
you have to make note and remember all these important points which are writing on the board right now. उसके बाद में remember okay, this will be fine, but I hope everyone understood the entire functional group जो मैंने भी explanation दिया है. You have to make note of entire points in it, revise these points, make sure आपके functional groups thorough हो जाए, आपके लिए clear हो जाए इस सब part के अंदर. Okay, so this is the entire discussion of functional group with different types of the organic compound. We have functional isomers, acid derivative, carbonyl compound. We have non-carbon functional group. We have functional group with carbon. आप लोगों को ये मैंने सिखाया है कि इसके अंदर हम लोग चेंजेस कैसा लेके आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अल्केन से कैसा डिराइव किया जाता है, उनके जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू कंसिडर सम एग्जाम्पल्स एंड यू कैन राइट डाउन दोज एग्जाम्पल्स. ओके गाइस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटायर फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट लेक्चर GOC में मिलेंगे, वे वी स्टार्ट विद द IUPAC. टिल देन टेक केयर.